کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے الزام لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو نبی منتے سن مرزا صاحب عامر بھائی تھوڑا جہا کنفرم کر دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو نبی منتے سن ਆਹੋ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਸ اللہ کا سچا نبی سن ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਪਣਾ, ਉਹਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਧਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ 10 ਮਿੰਟ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ, 10 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਭਰਾ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ 10 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਭਰਾ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ 10 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਭਰਾ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਸਿਰ ਛੁੱਤਰ ਮੁਰਗਾ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀ ਗਲਤ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਡੈਕੋਰਮ ਨੂੰ ਮਲੂਜ਼ੇ ਖਾਤਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾ ਕੌਣ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੱਧ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਾ ਵੇਖੋ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ, ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਿਆ ਮੁਖਾਲਫ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁੱਦਾ ਧਰੋ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣੀ ਉਹ ਤੇ ਤਕਰੀਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਮੇਰਾ, ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੋਗੇ ਸਾਰੇ। अबू बकर भाई को सुनो, उनकी सुन के आए ने वो अपना अबू बकर भाई वो बंदा उनकी पे सुनांदा सी ओही क्लाउड। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। नहीं मैं तो सिर्फ अपना उत्थे पॉइंट ऑफ व्यू दे के आया, यूसुफी साहब ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, मैं तो नहीं सुनी किसी ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ। मैं आ गया वापस, सिर्फ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਆਈ ਹੈ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਦ ਯਾਦ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਜੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸਬਰ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਨਜਬ ਭਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਰੂਥ ਸਰਚਰ ਸਾਹਿਬਾ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾੜ ਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲਹਾਦ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਤੋਂ। ਇਲਹਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੁਲਹਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਉਹ ਅਸਲ ਤੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੌ ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਰੱਦ ਅਮਲ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਰਾੜ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਇਦ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਇਦ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬਰਾੜ ਅਗਰ ਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। वालेकुम अस्सलाम। टाइम किसी को नहीं दिया जाता, जब बोलना हो इंसान बीच में बोल ही दे। क्या ख्याल है? बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, आप लोग टाइम तो देते नहीं हो। अच्छा अबू बकर भाई, आप शोर क्यों कर रहे हैं, मुझे ये बताइए।
3 दिन से आप शोर कर रहे हैं। खामोश हो गया हूँ मैं, मेरी बात शायद गलत बात हो रही थी, मैं बंद कर दिया मैंने माइक। हाँ, आपकी बात गलत है। आप भाई जो बात कर रहे हैं ना, हर आदमी का अपना एक तरीका होता है बात करने का, उसलूब होता है। तो आप लोग मत कोसो ना दूसरों को। 3 दिन से आप लोग कोस रहे हो अपने भाइयों को, ये याद रखना। मैं वॉच कर रहा हूँ। एक तो खुद हम लोग के दिल दुखे हुए हैं, ऊपर से आप लोग ही जो है नखरे कर रहे हो। याद रखना, ये गलत बात है भाई। किसी ने ब्रोड लगा लिया, 2-4 आदमियों ने अगर बात की अपने सुलूब से, आप लोगों को क्या परेशानी है बताइए? तुम्हारी जुबान मेरे मुंह में आएगा? तुम्हारी अकल मेरी अकल तुम्हारे जैसे होगी? भाई अल्लाह से डर जाओ। अल्लाह पाक ने आपको सलाहियत दी है, आप काम करो, रज के करो, सिर्फ अल्लाह के वास्ते। दूसरा एक नादान जाहिल जपट मेरा जैसा, वो अपने हैसियत के मुताबिक, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, वो अपनी वसात के मुताबिक काम कर रहा है बेचारा, उसका दिल जला हुआ है। आप आके जो है कहते मेरी जुबान देखो, ये जुबान बोलो। भाई वो जुबान नहीं आती हमें। अल्लाह से दुआ करो हमें आ जाए, बल्कि आपसे बेहतर आ जाए, ये दुआ करो। ये आप लोग करते नहीं हो। 3 दिन हो गया है जब से उस खबीस ने अपनी खबासत फैलाई हुई है। अक्सर गुफ्तगू आप लोगों का रोज़ सुखन अपने भाइयों के खिलाफ है। वजह अबू बकर भाई, वजह कोई बोलने वाला नहीं है आप लोगों को। आप लोगों की मर्जी चलेगी क्या? आप ही लोग हो बस। हम तुम्हारे भाई नहीं हैं, दूसरे तुम्हारे भाई नहीं हैं, दूसरों को दुख नहीं हुआ है, आपसे ज्यादा हुआ है हो सकता है। कौन कह सकता है भाई? ये दिल का हाल कोई नहीं जानता। तो भाई जब रोड लगी हुई थी ना भाई, वहां हम भी बोलना चाहते थे, हर आदमी बोलना चाहता था। भाई 2 आदमी पर कह रहे हैं कि भाई इस खबीस ने गलत किया है, आप कहते नहीं तुम लोग मत करो, ये हरकत तुम लोगों ने क्यों की? क्यों इशारे के नाव में क्यों तीरें चला रहे हो मुसलमानों पे? अबू बकर भाई ये हरकतें मत करो, मैं तंग आ गया हूँ, 3 दिन हो गया। ठीक है अबू बकर भाई? नहीं तो जी साहब, बिल्कुल हर बंदे का अपना राइट है, हर बंदे का राइट है, क्या हक राइट है? क्या राइट है? मैं बता रहा हूँ कौन सा राइट आपके पास आ गया है लोगों को रोकने के लिए? क्या राइट आ गया? बात भी नहीं करने दे रहे आप। मैं 3 दिन से बोल रहे हो, लोग खामोश हैं। आप लोग की बातें सुन सुन के पेनाडोल काका के जो है वो सत्यानाश हो गया है। बोले। अच्छा सुन तो लें, अब मुझे भी तो बात कर लेने दें। कीजिए। देखिए ना, हर बंदे का अपना राइट है। मेरा एटीट्यूड यही है और मैंने यही करना है। जिसको प्रॉब्लम है वो मुझे उतार सकता है, मेरे साथ नहीं बैठ सकता, मेरे साथ इख्तिलाफ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एटीट्यूड तो यही है। गलत हो आप। है अगर किसी को मेरे इस काम से प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरे साथ साथ छोड़ सकता है, ना बैठे मेरे साथ या मुझे उतार दे। आपका साथ, आप हमारे साथ छोड़ दें, चले जाएं। मैं पीर साहब, मैं आपके पास नहीं बैठा हुआ। मैं क्यों छोड़ूं आपको? मैं वही तो कह रहा हूं, मैं आपके पास बैठा नहीं है, आपकी ब्राड पे मैं इसलिए कभी आता भी नहीं। जिस आप लोगों ने एक जो है बदमाशों का ग्रुप बनाया हुआ है, जिसको बैठना है बैठे, नहीं बैठना है ना बैठे, ये क्या बदमाशी है? अब वही है, मेरी तो बदमाशी यही है पीर साहब। अगर आपको प्रॉब्लम है तो कोई मसला नहीं। बदमाशी अपनी छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ सकता पीर साहब, मैं नहीं छोड़ सकता। इस बदमाशी को छोड़ दो, गलत मैं तो नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह आपको राइट है उसी तरह मुझे भी राइट है। जिसने बैठना नहीं है चला जाए, तुम चले जाओ, रुक जाए, तुम चले जाओ, रुक जाए। ये बराडों से ना भाई, बराडों से ना एक दूसरे को उतारें। आमिर भाई आप लोगों ने हम लोग को तंग किया हुआ। बात ये है, आमिर भाई 3 दिन से तंग कर रहे हैं आप। भाईजान 3 दिन से गलत पट्टी पढ़ा रहे हैं आप। बात में ना जिस तरह से मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात तो अब सुने ना। जिस तरह से आपको ये हक है ना कहने का, किसी को हम किसी गलत का पट्टी पढ़ा रहे, ख्याल ही नहीं है। सुने तो सही, आपने सुने नहीं तो सही। बैठना है, हम ला ताल्लुकी इख्तियार कर रहे थे। सुने क्या तो सही ना, बात तो करे देना। अफीश शेख वाला काम ना करें, बात तो करने देना। हाँ करें बात। अगर आप लोगों ने यह बात अगर की, आपको हक है, मेरा यही तरीका है, मैं तुम लोगों को गाली दूंगा, याद रखना। भाई दें गाली, बेशक दें, तुम लोगों ने गाली दें, बेशक दें, उसमें तो कोई मसला। आमिर हमें भाई कौन सा मेरी पहली बात दफा गाली? आमिर भाई मेरी बात सुने,
आइंदा अगर आप लोगों ने अपनी जुबान से ये निकाला कि जिसने बैठना है बैठे, नहीं बैठना ना बैठे, भाई तुम जाके घर में बैठो। नहीं नहीं नहीं, वो तो ब्राड से तो निकालने का या उतारने का या बैठने का तो कोई सवाल ही नहीं है। आमिर भाई बदमाशी नहीं, नहीं। बदमाशी एक हद तक करें। आमिर भाई आप हमारे बड़े हैं, ये क्या पट्टी पड़ा रहे हैं लोगों को? भाई जिसने हमारे साथ काम करना है, ये काम तुम्हारा है, ये तमाम मुसलमानों का है। अच्छा वो तो बात उनकी गलत नहीं है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है कि किसी को ब्राड से कहा जाए कि भाई आप हमारे साथ बैठे ना बैठे, जिसका दिल करता है बैठे, नहीं दिल करता ना बैठे। ये क्या तरीका है भाई? तुम्हारा दिल नहीं करता, भाई तुम्हें बोलने का हक है तो ठीक है, हमें भी बोलने का हक है, हमारी भी बात सुनो और बर्दाश्त करो। आप जिस तरह से हम लोग बर्दाश्त करते हैं ना, आप भी बर्दाश्त करो। ये ना कहो जिसने बैठना है, मेरा तो यही तरीका है, मेरा तो यही तरीका है। अच्छा आमिर भाई ये बात भी गलत है कि मैंने ये बात की है कि जिसने बैठना है बैठे। मैंने कहा है जिसने मुझे उतारना है उतार दे, जिसने मेरे साथ नहीं बैठना ना बैठे। भाई मैं तो ऐसे अल्लाह के वास्ते, अल्लाह अबू के बकर वास्ते भाई दादागिरी मत करो। आप लोग चंद दिनों से दादागिरी कर रहे हैं। आप यकीन करें, आप एक अच्छे इंसान हैं, जमाने से मैं आपको जानता हूँ। चंद दिन हो गए हैं, आपका रूह सुखन बड़ा तल्ख है, आपका रूह सुखन बड़ा जो है डिस्टर्ब है। आप जो है बिल्कुल शोर शराबे के कायल हैं, मारपीट के कायल हैं, ज्यादती और जबरदस्ती। कितने लोगों को कत्ल किया है इन्होंने, अबू बकर ने, और कितने लोगों को यूसुफ ने कत्ल किया, कितने लोगों का मेरे पे पर्चा। अल फितना तो अशद्दु मिन गलत है। फितना कत्ल से ज्यादा गलोना अमल है। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कहाँ अप्लाई कर रहे हैं इस आयत को? कौन सा भाई फितना मैं बरपा हो गया? मैं इस पे आप अप्लाई कर रहा हूँ। आप लोग किसी को काम करने देते ही नहीं दुनिया में, बस आप लोग ही हो काम करने वाले। भाई अगर किसी ने बुरोड़ लगा लिया, नहीं, आप वहाँ किसने क्या मना किया काम करने? चना लेने गए थे, बताइए कहाँ? कौन सी ब्राड की बात? जब बुरोड़ लगाया, एक खातून ने बुरोड़ लगा ली, वहां पर लोगों ने आकर बातें की। आप लोग उनके खिलाफ क्यों बोल रहे हो? 3 दिन से भाई हमें वो जो बात गलत है ना, मेरी बात सुने ना फिर उसका भाई जो बात हमें नहीं मालूम, हम पागल हैं, हम लोग दुनिया में पागल हैं। आप लोग ही बड़े समझदार हो। अगर आप मेरी बात सबब मेरी आप बात लोग तो बनते सुनना, हो। अगर आप जाकर समझदार- गाली गलोच करवाते हो आमिर नजीर, जाकर शातनियत करवाते हो किसको तुम्हारी गाली पार्टी। गलौज करवाएगा? ये क्यों हुआ? किसको जाके शातिमियत करवाएगी? ये कौन सा? खबीस ने नबी अलैहिस्सलाम पर बोंका ये क्यों? इसका उस बंदे का तो मुझे नाम का भी नहीं पता जिसके साथ ये हुआ है, जिसके सामने ये शातिमियत हुई। हमें तो कोई देखो हमारा कैसे उस भूल टीम के जाते साथ- हो। आमिर भाई मैं आपकी इज्जत करता हूँ, जितने आप नबी से प्यार करते हैं उतना मुझे भी प्यार है। जितना आप दीन पे पैरा हैं, मुझे भी उतना ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने तौफीक दी है। तो आप प्लीज अपने भाइयों को कोई कहीं पर क्या काम कर रहा है उसके खिलाफ मत बोलिए, बड़ा दुख होता है। और ये जो एक आमिर भाई, ये जो एक फिक्र आपने दिया हुआ है ना, ये फिक्र आपने दिया हुआ है आमिर भाई, ये फिक्र आपने दिया हुआ है। जिसने हमारे साथ, भाई 3 दिन से मैं सुन रहा हूं, क्या बात करें? किसी को और बोलने का इजाजत दोगे नहीं दोगे? क्या आपकी बात जब ये बुरोड़ आपने खरीद लिया है? ये बुरोड़ आपने खरीद लिया है? ये क्या तरीका हुआ? आमिर भाई ये जो सबक आप सिखाते हैं ना भाइयों को, भाई जिसने हमारे साथ बैठना है तो ठीक है, नहीं बैठना भाई ये आपका काम नहीं अकेला। अल मोमिन मोमिन का भाई यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा, वो एक दूसरे की जो है वो मदद करता है। जिस तरह ईंट एक दूसरे के ऊपर एक दीवार बन जाती है। आप लोग 2-4 इसको भगा दिया, उसको भगा दिया, उसको भगा दिया, इसको भगा दिया, मेरे तबीयत के हिसाब नहीं है। जो भी मुसलमान ने काम किया इस बारे में, आप लोगों ने उनको जो है सुबकी से यहाँ उनका नाम लिया और गुफ्तगू की, मुझे बहुत बुरा लगा। चलिए आप ना पीर साहब जरा 2 मिनट वेट करें जरा। पीर साहब एक मिनट आमिर भाई, ओ की नाम है पीर साहब, जो उधर सीकर की ब्राड में बात हुई है, अमर भाई ने तो मुसलमान को किसी को कुछ बोला ही नहीं है। वो तो सिर्फ ये बोला है कि जो अली यार लगाई है ब्राड। अमर साहब तुसी जरा शोमोश करो ना, 2 मिनट थल्ले पवो जरा, तुसी 2 मिनट थल्ले पवो जरा। वो जो ब्राड लगाई थी ना खवातीन ने अपने सैफी के खिलाफ, तो ये तो अमर भाई कह रहे हैं अगर आपने छोड़ना ही है तो मिर्जा साहब को छोड़ें।
अपने किसी मुसलमान भाई को कुछ भी नहीं उन्होंने बोला, तो अबू बकर भाई ने भी अपनी बात की है, हम आपको नहीं भेजते। जिसका आपको दिल करता है आप उसको नीचे उतार दें, आप उतार दें। अगर आपका दिन करता है अबू बकर भाई के साथ बैठना, आप अबू बकर भाई को नीचे बैठा दें, आप अबू बकर भाई को नीचे बैठा दें। इधर अगर कोई मुझे अजीज है वो है आमिर और अबू बकर, ये आप जानते हैं। हमें बहस करने का फायदा ही कोई नहीं, उन्होंने आपको ऐसी वैसी कोई बात नहीं की है। भाईजान मेरी बात सुने, वो गलत पट्टी पे है, मैं ये कह रहा हूँ कि उसको जेब नहीं देता। नहीं, जिस तरह से आपको फिर अस्कानी भाई आप बस भी करें ना, इतनी देर होगी आपको बोलते हो, टाइम आपका खत्म हो गया है बात अगर करने का, तो मुझे भी जवाब तो देने देना। अच्छा बोले, इतनी देर से आप जी बोले। मतलब बेरब्त बात आप करते जा रहे हैं और गलत बात को घसीट रहे हैं, बल्कि उसकी लाश को घसीट रहे हैं। भाई कह दिया ब्राड से नीचे उतर जाओ, किसने आपको कहा नीचे उतार दो या उतर जाओ? उसने तो अपने आप को कहा। आमिर भाई इन्होंने अपना बोला था, अपना बोला था गल करन देना अली यार, मन तो गल करन दे, मैं कोई थथा। मतलब एक बात को आपने कम से कम 6-7 दफा दोहराया है कि भाई बदमाशी शुरू की हुई है ब्राड से नीचे उतारने की। भाई किसने कहा, किसको कहा उतारने का? क्यों एक बात को गलत आप कर रहे हैं, उसको अकाउंट करके तो उसको दोहरा रहे हैं? जिस तरह से आपको हक है ना इस तनकीद का कि हम किसी को पट्टी पढ़ा रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमें भी अक्ल दी है, हमें भी शऊर दिया है, हमें भी हक है कि जो जोहला हैं, जिन्होंने तहरीक को नुकसान पहुंचाया है, जो गालियां देने वाले हैं, जो माइक लगा के लोगों की माओ बहनों को या किसी के मिर्जे को जाकर गालियां देते हैं, हमें भी हक है उनको गलत कहने का। आपको हक है ना, आप कहें भाई हम गलत पट्टी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिसका दिल करता है पढ़े, जिसका नहीं दिल करता ना पढ़े, कोई झगड़े वाली बात नहीं है। इसी तरह से हमें भी हक है कि हम ये कहें कि जो लोग गलत बात कर रहे हैं उनकी बात में ये गलती है, इससे कोई तूफान ये फितना बर्पा हो गया, कत्ल गारत शुरू हो गया, कितने बंदे कत्ल हो गए हैं, किस किस पर पर्चा हो गया। 3 दिन से हम पट्टी पढ़ा रहे हैं, 3 दिन से दादागिरी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, हद होती है। आपको मेरा ख्याल है कि कोई 6 महीने हो गए हैं या 3 महीने ही हुए हैं, अभी 6 तो नहीं हुए, कि आपने कोई वीडियो नहीं बना के दी मरजाइयों को, वो आप बना रहे हैं बस। बात तो कुछ भी नहीं है आपके पास। किसने आपको कहा ब्राड से नीचे उतर जाए? सच्ची बात करें कि वो अबू बकर भाई आपको कह रहे हैं कि भाई अगर आपका नहीं दिल करता मुझे ब्राड से नीचे उतार दे। पहला फिक्रा मैंने खुद सुना, मैंने सुनी उनकी बात सारी। आप गलत बात उनकी कोट कर रहे हैं, उन पर इल्जाम लगाएंगे तो मैं रिकॉर्डिंग बाय निकाल देता हूं, रिकॉर्डिंग निकल आती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह से ना करें। जो आपको सही लगता है आप वो कहें, जो हमें सही लगता है हम वो कहेंगे, जो अबू बकर को सही लगता है वो कहेगा, जो यूसुफ भाई को सही लगता है वो कहेगा। हर एक को हक है कहने का। अभी बोलने देना, हम कोई फितना बर्पा नहीं कर रहे, लेकिन हम एक मिनट 3 दिन से नहीं बोले, उनको निकाल दे अपनी गैप, 3 दिन से इकट्ठी हुई है, निकाल दे। 10 सेकंड उसके बाद मैं माइक आपको देता हूं। अच्छा ठीक। मैं ये कर रहा हूं कि जो हमने जहालत अपनों की देखी है और जितना नुकसान हमारे अपनों ने पहुंचाया है, अगर हम दिल खोल कर बयान करें ना इनकी अपनों की जहालत, तो आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे कि ये सारा नुकसान करवाने वाले हैं ही हमारे अपने, गलती है ही हमारी अपनी। ज्यादा मुंह ना हमारा खुलवाएं, बस करें बात। सबसे पहली बात यह है कि ये आप कह रहे हैं कि मुंह ना खुलवाएं, आप खोलें, खुला डोला बोले। और आप ये बोल रहे हैं कि मैं यही तो कह रहा हूं, मैंने यही तो कहा, लेकिन आपने मेरी बात सुनी नहीं। आपको सुनना चाहिए मैं क्या कह रहा हूं। जब मैंने कहा बस करे भाई, मुझे भी बोलने देना। वो कहते भाई जिसको सुनना है सुनना है, नहीं तो हमारे साथ न रहे। क्यों ये कह रहे हो? मैं भी यहां तुम्हें कोसूंगा, मेरे साथ ही बैठो, रूबरू बात करो। यही तो कहा था ना। क्यों भाई भागोगे? वजह क्या है आप बोलो। आपने गलत लगा, आपने गलत किया। मैं कह रहा हूं जिस तरह से आपको लग रहा है कि आपके जो है दावत और तबलीग को नुकसान पहुंचाया है किसी ने, उसका नाम लो। सीधा तुमने ये बात की, वो अपना जवाब देगा, आपको सुनना पड़ेगा। यही तो अबू बकर को कह रहा हूं कि 3 दिन से आप लोग लगे हुए हो, कोसते रहते हो अपने भाइयों को। अब मेरी भी सुनो। कहते नहीं मेरा तो यही तरीका है, जिसने बैठना है बैठे, जिसने नहीं बैठना नहीं बैठे। वजह तुम्हारे रूबरू ही बैठूंगा। ये नहीं सुना आमिर भाई आपने? अच्छा फिर अस्कानी भाई, आपने जो 3 दिन से गैस इकट्ठी की थी वो इधर अपने भाइयों पे निकालनी है, गुस्सा आपको सैफी पे है, निकाल आप इधर रहे हैं। एक मिनट मुझे गुस्सा
किसी पर नहीं है, अपने भाइयों पर नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप देखते हैं एक चीज गलत है, आप कहते हैं, जो मैं देखता हूं मैं उसको कहने का हक रखता हूं या नहीं रखता? आमिर रजीक साहब इसका जवाब दे दीजिए। मैंने तो ये कह दिया कि आपका भी उतना ही हक है, आप कह भी रहे हैं, तो कौन आपको मना हाँ, करेगा? तो मैं ये फिर वो क्यों जाने की बात करता है? नहीं, सुनो मेरी बात। जाने आने की तो नहीं, उन्होंने कहा कि अगर आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा तो हमने तो ऐसे ही करना है, नहीं पसंद आ रहा मुझे नीचे उतार दें। तो मैंने आपको बोलना है, क्यों उतारूं आपको? बेटो सुनो, जिस तरह से आप 3 दिन से लगे हुए हैं ना, हाँ सुनाए आपको सुनाए सुनना होगा। सुनाए हाँ। सुनाए। जाने की बात ना करें। देखिए आमिर भाई वो कौन लोग हैं जिन्होंने नुकसान पहुंचा है दावत तबलीग को? कौन लोग हैं? हाँ वो हम अपनी मर्जी से जुबान पे लाएंगे। हाँ देखा, तो ये गलत बात हो गई ना। नहीं गलत नहीं अच्छा, है, भाई- ये हमारी हिकमत है। बात- जब मेरी बात सुने, एक लिमिट होती है, जब कोई बंदा जहालत में, गुमराही में उस लिमिट को क्रॉस करता है तो उसका जुबान पे नाम भी हम लेते हैं, लेकिन कोई अच्छा, बंदा आमिर है भाई, उसकी मेरी ये बात सुने। कहाँ तक दुरुस्त है आमिर भाई? ये नहीं, वो तो बताएंगे नहीं, छोड़ दो, तावीलों को छोड़ दो, सीधा बताओगे बताओ, नहीं तो उसको छोड़ दो। मैंने वो कहा बात- कि कुछ लोगों का बताने हमने की नाम काबिल लिया भी है। अब आप अगर कहते हैं कि सबका नाम लो, हम नहीं लेंगे। हाँ, ठीक है, छोड़ो फिर उसको भाई। किसकी आमिर भाई लेकिन किसी की जहालत छोटी होती है ना, मेरी बात सुने, तो उसको इशारतन भी बताया आमिर भाई- जाता है कि ये जहालत है, कोई आमिर जरूरी भाई नहीं होता बात नाम ले। आमिर भाई बात सुनो, अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि उस खबीस ने गलती की है, आप कहते हैं ये कहो ही नहीं, भाई कुछ लोगों को तो लाओ अपने पास जो उसको लानत मलामत कर रहे हैं, आप कहते हैं नहीं, मिर्जा को भी साथ कहो भाई। कौन? विराट को कौन सा हो गया? वो जी इसके खराटों की आवाज तो नहीं आ रही। कोई बात नहीं आमिर भाई, अगर एक इंसान ये कह रहा है ब्रोड लगाकर अपने एक खबीस मुअल्लिम को मलामत कर रहा है, और वहां पर कुछ लोग आकर बयान भी दे रहे हैं कि मलामत हैं, आप उनको रास्ते में एक बंद बांध रहे हैं कि नहीं तुम लोगों ने ये गलत किया, तुम लोगों ने ये क्यों किया? ये एक तरीका, ये गलत है। हाँ, अब आप इसको अच्छी तरह पेश कर लें मुकदमे को, मैं अभी इसका जवाब दे दूं। हाँ, ये तरीका ही तुम्हारा गलत है। पहले मिर्जा को कहो और बाद में मुअल्लिम को कहो। भाई मिर्जा तुम्हारे सामने है, अभी एक बदकारी होती है, आप कहते हैं पहले बदकार उसको कहो, सजा इसको अभी देंगे। अभी कोई चोरी करता है, आप कहेंगे पहले मिर्जा को वो चोरी, बाद में उसको चोरी का सजा दे दो। अभी कोई गाली देता है, आप कहते हैं पहले मिर्जा को देखो, उसको गाली दो, बाद में। ये कौन सा उसूल है आमिर भाई, बताइए। हाँ, अब आप जरा म्यूट पे जाए ना, मैं 2 मिनट बोलूंगा जरा। अच्छा आमिर भाई, मैं सिर्फ 30 सेकंड बात करता हूँ। मुझे हुआ है आज कि हम जो पिछले 3 दिन से बात कर रहे हैं ना, वो बात हमने क्या की है और किस एंगल से की है और क्या बात की है, वो पीर साहब को पता ही नहीं है, और ये चढ़ दो रहे हैं। बस इतनी सी बात ही करूंगा। ठीक है, गुजारिश ये है कि जो ये वाकया हुआ है ना, उसी वक्त मुझे किसी ने वीडियो भेज दी, मैंने उस पर कोई कमेंट नहीं किया। जिस तरह से दीगर शातमियतें होती हैं ना, मैंने इसको भी एक शातमियत समझ के उसका घोंट भर दिया, जिससे गुस्से से घोंट भरते हैं ना, इस तरह मैंने उसका घोंट भर दिया कि चलो ठीक है करते हैं, तो ये तो रोज का मामूल है। बात तब शुरू हुई है जब उनके एक बंदे ने, एक फर्द ने, जमात अहमदिया के खातून ने ब्रॉड लगाकर उसी मुअल्लिम को वहां पर बुलाया, या वो खुद आ गया। मुअल्लिम ने आकर अपनी दलील पेश की कि आप जो मेरे मुतल्लक ये बात करना चाह रही हैं या मेरे खिलाफ ये ब्रॉड लगा रही हैं, इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं बेकसूर हूं, क्योंकि मैंने वही काम किया जो मेरे मसीह मौद ने किया। अब उसके जाने के बाद हमारे कुछ अजीम मुजाहिदीन खत्म नबूवत चढ़ गए, उन्होंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया कि ये झूठा है, ये शातिम है, ये है, ये वो है। भाई जो वो बात करके गया है उसका जवाब है किसी के पास? अगर उस बात में वो हक बजानिब है ना और वो दुरुस्त बात कर रहा है, तो आपको उसी को सपोर्ट करना चाहिए। और वैसे भी ये हमारे फायदे में है, क्योंकि हमने ये ड्रामेबाजी 1.5-2 साल देखी है। एक शातमियत करता है, एक बैड कॉप बन जाता है, दूसरा गुड कॉप बन जाता है, उसका कोई फायदा भी नहीं है। हमारे फायदे में भी यही बात है कि जो पूरी मिर्जाइयत का चेहरा है वो नंगा पेश किया जाए, ना कि एक जुज उसका
एक एलिमेंट गंदा, एक एलिमेंट साफ, एक कंडेम कर रहा है, एक उसको शातमियत कर रहा है। हमें उसका कोई फायदा नहीं है कि हम एक के साथ बैठकर दूसरे की मजम्मत करें, उसका हमें कुछ फायदा नहीं हुआ, हमारा तजर्बा है। इसलिए हमने कहा कि वो मुअल्लिम सही बात कर रहा है, वो सही बात कर रहा था, ये खातून गलत बात कर रही है। अब इसमें जिन लोगों ने खातून को सही कहा, उसकी हौसला अफजाई की और मुअल्लिम को गलत कहा, हमने साथ उनको भी गलत कहा कि आपका ये मौक़िफ़ गलत है। नाम लिए बगैर हमने कहा, हमने किसी को गाली नहीं दी, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन हमारी नज़र में उनका ये मौक़िफ़ जाहिलाना है और बेसूद है। अब इसमें फितना बर्पा हो गया है, जंग शुरू हो गई है, ओए होए, तो इसका तो हमें नहीं पता, लेकिन हम तो यही बात कहेंगे जो हमें सही लगती है। अब आपको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं तो आप कहते रहें हम गलत कर रहे हैं, आप वाबिल्ला बचाएं, बेशक कोई मसला नहीं। आमिर भाई 2.5 मिनट हो गए। चले करें। आमिर भाई देखिए, मेरे सवाल को आपने बिल्कुल आराम से वो हल्का समझ के आपने एक और कहानी बताना शुरू कर दिया। मेरा सवाल आपसे ये था कि अभी कोई ज़िना करता है, आप उसको छोड़ देंगे? कहेंगे देखो मिर्जा जी ने ज़िना किया था, पहले उसके बारे में बात करो। इसका जवाब क्यों नहीं देते? हाल में क्या हुआ है? हाल में कोई चोरी करता है, आप कहते पहले मिर्जा जी का, उसको पहले चोर कहो, बाद में इसको सजा दो। आमिर भाई ये कौन से कानून में है? और वो जिस खातून ने लगाई हुई थी ब्रोड, वो तो मुसलमान हो चुकी है, आपको क्या परेशानी उससे? दूसरी बात, आप कहते हैं मैंने किसी का नाम नहीं लिया। भाईजान आपने नाम तो नहीं लिया, लेकिन सब जानते हैं आपका जो है रोज़ किसकी तरफ है। कोई पागल तो नहीं है आमिर नज़ीर भाई। इससे लोगों के दिल जो है वो नफरत, एक दूसरे के साथ जो है नफरत, फितना होता है। यही तो मैंने कहा था। वो जानता है आप मुझे बोल रहे हैं, वो लोग जानते हैं कि आप रोज़ सुखन आप जो है निशाना हमारी तरफ तोपों का है, वो सब जानते हैं ना भाई। मुझे नहीं लगता कि आप जैसा एक संजीदा इंसान इस तरह की हरकत करे। भाई जिसने माना, कहता है ये गलत है, उसको कबूल करो कि बिल्कुल ये गलत है। हाँ ये आप ज़रूर करो भाई, आपने माना गलत है, हम आपके साथ हैं, सही है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये मिर्जा जी की जो है वो तालीम है, मिर्जा जी ने यही तालीम दी, इसलिए मुअल्लिम कर रहा है, उसको तो शाबाशी दे कम अज़ कम। आप कहते हैं नहीं तुम गलत हो, ये ब्रोड लगाओ ही नहीं। भाई 2-4 आदमी अगर निकल रहे हैं और उसको मलामत कर रहे हैं, आप करने दीजिए, क्योंकि अभी जो कुछ हुआ है उस पर बात हो रही है। 2-4 मुसलमान बकौल आपके वो नादान हैं, उनको नहीं मालूम, लेकिन वो अपनी सलाहियत के मुताबिक ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, उनकी वसात यही है, उनकी समझदारी यही थी कि इसने बात की है, हमें साथ देना चाहिए और इनको शाबाशी देनी चाहिए। तो ठीक है, इसमें कौन सा जो है वो पार टूटा है? आप उनके खिलाफ बात करेंगे, आप उनके खिलाफ बात करेंगे आमिर भाई, वो आपके खिलाफ बात करेंगे, हमारे दरमियान एक दरार रहेगा। ये दरार क्यों आप पैदा करना चाहते हैं? पैदा तो आप कर रहे हैं ना। उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा, उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा, आप उनके अमल को गलत कह रहे हैं। भाई गलत हो सकते हैं, आपके नजर में गलत है, अगर गलत है आप आराम से उनको समझाइए, लेकिन हाल ये कि आप उनसे नाराज हैं और तोप चला रहे। क्या वो नहीं जानते? वो अपने जो है घर बैठ के तोपों का रुख आपकी तरफ कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? मेरा मकसद कहने का सिर्फ इतना है, कोई नादान नहीं है भाई, कोई पागल नहीं है। आप किसको कह रहे हैं मैं जानता हूं, आपने नाम नहीं ले, मैं जानता हूं, और वो भी जानते हैं कि आप उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, और यही बात वहां चलाई जाती है। ये क्यों हो रहा है? ये मत कीजिए। अभी हाल में ज़िना कर दिया इसने मुअल्लिम ने, तो आप पहले मिर्जा जी के ज़िना के बारे में पूछेंगे या इसको सजा दिलवाएंगे? इसका जवाब दो जी। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये जो सवाल आप दूसरी बार कर रहे हैं ना, ये मिसाल जो आप दे रहे हैं ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होती है। हमारे पास ना कोई थाना है, ना कचहरी है, ना हथकड़ी है, ना सजा है, ना कोड़े हैं, ना सजाए मौत देने के लिए रस्सा और कुआं है, ना पट्टा है। हम सिर्फ और सिर्फ मलामत कर सकते हैं। यहाँ पर सोशल मीडिया पर जो कुछ चीज़ है ना, उसके मुताबिक मिसाल दें। यहाँ पर तो सिर्फ मलामत की जा सकती है। अब एक मिर्जाई आपके साथ मिलकर उसको मलामत कर रहा है, दूसरे मिर्जाई की आप मलामत कर रहे हैं। इस कारकर्दगी को हम सिफर समझते हैं, बिल्कुल फजूल सरगर्मी है, बल्कि दूसरे लफ्जों में स्पोर्ट है जमात अहमदिया के उन लोगों की
जो चाहते हैं कि हमारा इमेज ना बिगड़े, जमात अहमदिया का इमेज ना बिगड़े, उनकी सपोर्ट है, हमाकत है, जहालत है, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। रही बात ये खिलाफ बात कर दी, वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं, रूह सुखन उस तरफ है। भाईजान हमें क्या परवाह है पीर अस्कानी भाई, यहाँ पहले क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या न सहे हमने सितम आपकी खातर, अब जान भी जाएगी सनम आपकी खातर। हमने पहले गालियां खाई हैं, ग्रुप बनाए हुए हैं, रवाल सारा किसी को कह दो वो जाके उस ग्रुप का हिस्सा बन जाता है। उनको तकलीफ हो रही है, वो उनका खाना नहीं है, वो जहन्नम जाए। जिसको तकलीफ हो रही है वो जहन्नम जाए, मेरी जूती को नहीं परवाह उसकी। जो कुछ लोगों ने, मैंने आपको दोहरा के बताने लगा हूं, जो गालियां मुझे मुसलमानों ने दी हैं वो मिर्जाइयों ने नहीं दी। मुझे ऐसे किसी मुसलमान से कोई हमदर्दी नहीं है। उसके दिल में नफरत पैदा होती है, होए और बढ़ती है और बढ़े, लेकिन मैं जहालत को इल्मियत तो नहीं ना कह सकता। अगर एक बंदा जाहिलाना काम कर रहा है, उनके नैरेटिव को सपोर्ट कर रहा है, मैं कहूं भाई मेरे दिल के वो नफरत ना पैदा हो जाए, हद होती है, होने दें होती है। तो आपको कौन कह रहा है कि आप नफरत पैदा करें? आप मोहब्बत पैदा कर लें। अगर आपको लगता है कि मेरे खिलाफ नफरत तो नहीं होने देना, सारा वो नजला मेरे ऊपर गिरने दें, आप उनको जाके जफ्फा डालें, मोहब्बत करें उनसे कि भाई हैं, कोई बात नहीं है। जाहिलाना बात कर रहे हैं तो क्या बात हुई, जाहिलाना बात कर रहे हैं, भाई तो हैं, आप करें ऐसा। मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो गलत को गलत कहूंगा, अपना है बेगाना है, जहन्नम जाए। जिसने नाराज होना नाराज हो गया। आमिर भाई 3 मिनट। आमिर भाई जान, बात यह है कि आप उम्र रसीदा के साथ साथ जज्बात के गुलाम हो गए हैं। आप जज्बात के गुलाम हो गए हैं आप, क्योंकि आपको गाली पड़ी इसलिए आपका दिल कभी भी साफ नहीं होगा। ये क्या है भाई? आपको सिर्फ गालियां पड़ी हैं, जो गालियां मुझे पड़ी हैं और आपके दोस्तों ने दी हैं वो मैंने कभी जिक्र नहीं किया। यहां कौन है जो गाली नहीं देता? भाई इंसान जो है कभी पागलपन उस पर सवार हो जाता है, गाली दे देता है। ये अपनी ज़ाती जो है चीज़ों को ख़त्म करके और ज़ाती चपकलिश को ख़त्म करके आप सिर्फ अल्लाह के लिए काम करें, अल्लाह के रज़ा के लिए। जिन्होंने आपको गालियां दी हैं कभी आप उनको माफ़ नहीं करेंगे, कभी आपका दिल साफ़ नहीं होगा। देखें आप कितने बड़े जज्बाती हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसे जज्बात को आप थोड़ा कंट्रोल रखें, ऐसे जज्बात ना पालें। मैंने आपको ये बताया, आप कहते हैं ये मिसाल बनती नहीं, क्यों नहीं बनती भाई? भाई एक ने गलती की है, गालियां दी हैं, तो भाई उसको मलामत करेंगे, तुमने गालियां दी हैं, क्यों दी हैं? लेकिन पहले मिर्जा का फैसला करेंगे हम। 2 आदमी अगर निकलते तो ठीक है, आप अपनी बात करें, आप कहें कि भाई इन्होंने ये कहा, इनको समझ में आ गया है, बिल्कुल ठीक है भाई, हम कदर करते हैं आपकी समझदारी को। अच्छा मुझे बताइए कि ये लोग जो कादियानियों में से निकल के आ रहे हैं, यानी कादियानी इंसान ही नहीं है, इनके दिल में कुछ भी नहीं है। अगर अच्छी बात करेंगे फिर भी आप कहेंगे कि नहीं तुम लोग गलत हो। तो ये जो मुसलमान हो रहे हैं, क्यों मुसलमान हो रहे हैं? गंदगी को देख कर ना। आपका ये बयान होता है कि किसी ने कुरान और हदीस को देखकर वो मुसलमान नहीं हुआ, बल्कि गंदगी को देखकर, मिर्जा जी की गंदगी को देखकर वो मुसलमान हुए। यही कहते हैं ना भाई। मैं कहता हूँ कि आप ठीक है, सही कह रहे हैं। तो ये गंदगी आप दिखाएं ना कि देखो ये गंदगी आपके लिटरेचर में है, इसलिए वो कर रहा है। आपने मलामत की, शुक्रिया, लेकिन आपके लिटरेचर में है ताकि 2-4 आदमी आ जाए ना। लेकिन आप कहते नहीं, पहले मिर्जा को कहो, उसको मलामत करो, इसने जो कुछ किया, नहीं तुम इसको मलामत नहीं कर सकते। भाई इसको सजा मिलेगा फिलहाल। कल यहाँ आकर, क्या नाम है अपना, वो जिन्होंने ऐलान किया था और रिकॉर्डिंग भी करवाई थी, क्यों करवाई थी? सही किया उन्होंने सही किया। भाई इसको सजा तो पहले, इसने ये गलत काम किया है ना, पहले मिर्जा का फैसला कर ले। उसका तो फैसला हो चुका, वो है जहन्नमी, उसने खबासत जो है वो की है। लेकिन इसने जो हरकत की है, इसको लगाम डालना होगा, इसको मलामत करना होगा। हम भी करें, आप भी करें, कादियानी अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, इतनी सी बात है। बहरहाल मैं
मसरूफ़ हो रहा हूँ, अपने भाइयों के ख़िलाफ़ आप जो बोलते हैं वो अच्छा नहीं है। और दूसरी बात यह कि आपसे मोहब्बत है, जो भी आपके साथ है, मुझे भी है। आपकी ये बातें सुनकर उनका भी मिजाज यही हो रहा है। ये मिजाज जो बन गया ना अबू बकर का, वो आपकी वजह से बना है, वो आपकी वजह से बना। असल में मैं अबू बकर को नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ। अबू बकर ने तो ऐसी बात ही नहीं की। मैं आपको कह रहा हूँ, शुरू दिन से जो है आप उन लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं जिन्होंने वहाँ उस ब्रोड में आकर अच्छी बातें की। उनके अच्छी बातों को आप जीरो कर रहे हैं। वजह क्योंकि आपको गालियाँ दी हैं, आप उनसे नाराज़ हैं। तो ये एक नफसियाती जंग है। इस नफसियाती जंग से आप निकले और अल्लाह की रज़ा के लिए अपने भाइयों को अपने दिल से माफ़ कर दें। गालियाँ सबको पड़ी हुई हैं आमिर भाई, उनको जाने दे, अपने हिसाब से वो काम कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ कहीं आपको मालूम हो जाए कि मैं ये बात करूँगा उनको तल्ख लगेगा, वो बात ही ना करो, बात ही ना करो। क्योंकि वहाँ वो बैठ के आपके खिलाफ बोल रहे हैं, यहाँ हम आपके खिलाफ बोल रहे हैं, आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं। ये एक आपस में एक जंग जारी है, तो ये मत करो। मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना है। मैं अभी मसरूफ़ हूँ, नीचे बैठ के सुनता हूँ। मेरे जगह पे पप्पू को लाइए, वो सबको जूता मारेंगे। बहुत शुक्रिया, नाराज़ नहीं होना अबू बकर भाई। अच्छा, गुजारिश ये है कि जिस तरह आपको मसरूफियत है, मैं भी मसरूफ़ होने लगा हूँ। लेकिन ये बात सुन लें कि आप जब आपके पास जवाब नहीं रहा तो आपने करैक्टर असैसिनेशन शुरू कर दी कि भाई मैं अपने नफ्स की जंग लड़ रहा हूँ, मुझे अपने ज़ात पर वो बुरा लगा, मुझे किसी ने गाली दे दी, मैं भुलाता नहीं हूँ। अब आपने मेरी ज़ात पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। असल में ये मिजाज का फ़र्क है। आपका अपना मिजाज है पीर अस्कानी भाई, हमारा अपना मिजाज है। आप जिन लोगों से गालियां खाते हैं, दोबारा उनके अंदर घुस कर मारने की कोशिश करते हैं। आपने खुद फरमाया मुझे कि मैं उनके अंदर घुस कर मारूंगा, मुझे मना ना करो। मैंने आपको रोका कि आप वहां क्यों जाते हैं, वो तो गालीबाज हैं, गालियां दे। आपने कहा मैं घुस कर मारूंगा, मुझे मना ना करना, क्योंकि शायद आपको गालियों की आदत है और आपको गालियां बुरी नहीं लगती होंगी, हमें बुरी लगती है। हमारा अपना मिजाज है। अब हम में से जो हम ख्याल लोग हैं, जो हम मिजाज लोग हैं, जिनका हमारे साथ मिजाज मिलता है, अगर वो इकट्ठे हो जाएं आपस में और वो कहें कि हाँ हम अल्लाह की रज़ा के लिए यहाँ काम करने आते हैं, लोगों से गालियाँ खानी थोड़ी आते हैं। अगर किसी बेशर्म आदमी ने गालियाँ दी हैं तो हम अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र तो कर सकते हैं कि जवाबन हम उनको गालियाँ ना दें, लेकिन उनको दोबारा भाई बंदी बना के उनके साथ जप्पियाँ पप्पियाँ नहीं हम कर सकते। ऐसे लोगों के साथ जो गालीबाज हैं, उनके साथ हम जप्पियाँ पप्पियाँ आपकी तरह नहीं कर सकते। आप आदी हैं, आपका अपना मिजाज है, तो ये मिजाज का फ़र्क है। आप खामखा से हमारे जो है ना वो करैक्टर असैसिनेशन शुरू कर दिया आपने, मेरी भी और अबू बकर मीर भाई की भी, कि भाई हमारे मिजाज इस तरह के बनते जा रहे हैं। हमारे शुरू से मिजाज इस तरह के हैं कि अगर कोई मुसलमान आपके साथ जुल्म करता है, ज़्यादती करता है, तो उसका बदला ना लें, अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करें, लेकिन बेगैरत भी ना बने। एक मुंह पर एक गाल पर थप्पड़ मारा है तो दूसरा गाल भी पेश ना करें कि कल गाली दी आज फिर गाली दो, ऐसा भी ना हो। ये है हमारा मिजाज कि अगर कोई गाली देता है, हमने लिख कर रख लिया उसका नाम गालीबाजों में, बिल्कुल सारी जिंदगी मुंह नहीं लगाएंगे जब तक वो अपने इस जुर्म का एतराफ़ करके कोई बंदा माफ़ी नहीं मांगता। हाँ, माफ़ी मांगता है, हम अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करने वाले हैं, हम उसको पसंद करते हैं। अगर कोई बंदा माजरत करता है दयानतदारी से, खुलूस से, नीयत से, इसको तो हम अपने अल्लाह की रज़ा के, इसको तो हम ज़्यादा अजर का वो समझते हैं, बायस समझते हैं कि अगर कोई बंदा माफ़ी मांगेगा तो हम माफ़ कर। लेकिन एक बंदे ने कल हमें गाली दी, नहीं हमारा मुसलमान भाई है, चलो आज फिर उसके साथ जप्फी जाके डालो। भाई ये आपका मिजाज है पीर अस्कानी भाई, ये हमारा मिजाज नहीं है भाई, इतनी बात है। बाकी जो गलत हमें दिखाई देता है उसको हम गलत कहेंगे और वो कहते रहेंगे, क्योंकि हमारी नज़र में ये निरी जहालत है। फिर आपने वही बात दोहरा दी कि भाई वो पहले उसको सज़ा दें। भाई कौन सी सज़ा है आपके हाथ में? कौन सी जुडिशरी है यहाँ पर बैठी हुई? कौन सा सेशन जज है जिसने सज़ा देनी है? एक मलामत करनी है, वो भी आपने एक मिर्ज़ाई के साथ बैठ के मलामत करनी है। एक मिर्ज़ाई के साथ बैठकर दूसरे मिर्ज़ाई की मलामत, हम इसको समझते हैं जहालत। ये इस पर हम डटे हुए हैं और इस पर इंशाल्लाह डटे रहेंगे जब तक हमें खुद नहीं कोई इसमें
लगता कि भाई गलती है, गलती महसूस होगी, छोड़ देंगे। आज की तारीख में 16 अप्रैल 2025 की तारीख को तो हमें यही लगता है कि ये तो निरी जहालत है। एक मिर्जाई आपके साथ आके बैठ जाए, कहे हाँ हाँ लानत डालो उस पे, चलो जी उसके साथ मिल जाओ, उसको गुड का बना लो, दूसरे को बैड का बना लो। जमात का इमेज तो ना खराब हुआ। हमें लोगों को इस जमात का पूरे का जो असल थ्योरी है, जो असल नजरिया है, जो बुनियाद है, वो पेश करनी है, और वो है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। उसने जाकर देखे फतेह मसीह के सवालों के जवाब देते हुए जो इल्जामी जवाब दिए हैं फतेह मसीह को, उससे बढ़कर इसने क्या कहा है सैफी को? ब्रेक मारे आमिर भाई। देखिए आमिर भाई, आपने कहा कि आप बड़े गैरतमंद हैं और जिसने आपको गाली दी तो आप कभी उससे बात नहीं करेंगे। नहीं, ये इसको गैरतमंदी नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? जहालत कह लें। जहालत। ये जहालत है जी, जहालत। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों में कौन गाली नहीं देता आमिर भाई? ये तो निशान हैदर है आप लोगों का। मैं माजरत चाहता हूँ बीच में बोलने की। पंजाब में ये गैरत ही है। माजरत नहीं, मेरी बात सुने आप। ये पंजाबियों को सारों को बुरा कर रहे हैं, ये पंजाब में ये गैरत ही है। आई एम सॉरी, मुझे नहीं बीच में बोलना चाहिए, लेकिन ये हकीकत आके पंजाब में आज तक गाली दी है। पहले ये बता लें कि किस मुसलमान को अमर भाई मैं बात करना चाह रहा हूँ इस वक्त। प्लीज मुझे सिर्फ पीर साहब ये बता दें, आमिर भाई ने कभी किसी को गाली निकाली है? अच्छा, अभी मेरी बात वो एक बात कर रहे हैं, उनको हक। एक सेकंड राणा साहब, मुझे एक सीट चाहिए, अगर आपकी मेहरबानी। मैं नीचे चले जाता हूँ, बस मैं इतना ये बताना चाह रहा था कि पीर साहब आप यहाँ पर थोड़ा सा गलत कह रहे हैं। आमिर भाई ने कभी किसी को गाली नहीं निकाली और उन्होंने ज्यादती की है उन लोगों ने आमिर भाई के साथ। हम आमिर भाई के मौक़िफ़ के साथ हैं और इंशाल्लाह ताला मर्दे दम तक इनके साथ रहेंगे। आप यहाँ पर थोड़े गलत हैं, सॉरी, बल्कि थोड़े नहीं, आप काफी गलत हैं। अच्छा, अब मुझे बोलने दें। आमिर भाई, ये गैरत। आमिर भाई मुझे ये बताओ कि आप लोगों का निशान हैदर नहीं है गाली देना? हर दूसरा मैंने किसको गाली दी? मैंने किसको गाली दी? किसकी बात कर रहे हैं आप? देखिए आमिर भाई, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। कभी शाज किसी ने गाली दे दी, वो तो है, इंसान है, लेकिन यहाँ हर दूसरा आदमी गाली देता है। तो हम तो बारात का ऐलान करते गालीबाजों से। किससे बारात का ऐलान करेंगे? जो भी गाली देगा। यहाँ पर बैठे हुए लोगों को गाली देते हैं। अगर कोई यहाँ पर बैठा हुआ गाली देता है, हम एक मिनट, ये मलिक जो बैठा हुआ इसने मुझे गालियां नहीं दी? हाँ, इसको रोकते हैं, मजम्मत करते हैं। कहाँ है गैरत इस वक्त? अभी मेरी सुने बात, परसों आपकी बरात से मैंने सीधा इसको ब्लॉक नहीं किया। आमिर भाई मुझे गुस्सा आया कि ये तंग कर रहे हैं। अभी आप देखे ना, आप गैरत की बात कर रहे हैं ना भाई। जो गैरतमंद होता है ना वो गाली नहीं देता, जो माशरा गाली देता है ना वो गैरतमंद नहीं है। तो आप पूरे माशरे को ना कि हम अपने जवाब दें, अपने माशरे में जो आपके साथ बैठे हुए हैं, आगे पीछे दाएं बाएं, भाई हम तो इनकी भी इस्लाह ही कर रहे हैं ना। अगर कोई हमें से गाली देता है हमारा भाई, तो हम उसको मना करते हैं ना। तो इसकी इस्लाह कर रहे हैं, उसकी इस्लाह नहीं करोगे? किसकी? क्योंकि उसने तुम्हें गाली दी है। हाँ, हमें गाली दी है तो हम उसको क्यों कहें कि भाई आज जफ्फी पालो हमारे साथ? जिसने मुझे गाली दी है उसकी इस्लाह करोगे? जिसने मुझे गाली दी उसकी तो इस्लाह करोगे। जिसने आप मेरी बात सुने, जिसने आपको गाली दी है आप उसके साथ ना बात करें ना उसके करीब हो, पीछे रहें उससे। वो तो आपके कंधों पे बैठ के गाली दे रहा है। मेरी बात तो सुने ना। मैंने कब गाली दी आपको? तो आप उससे पीछे हटके आप अपना इजहार तो कर रहे ना कि भाई मैं इससे बात नहीं करता, उसने मुझे गाली दी है। अच्छा आमिर भाई यहाँ पे ना दो बातें हैं। एक बात ये है कि हाँ सही बात है, ये जो गालियां निकालते हैं उनकी भी इस्लाह हमें करनी चाहिए। बस तो यहाँ पे एक मिनट पीर साहब, बात तो सुन रहे। नहीं, मुझे बात करना था, आपने मेरी बात को डिस्टर्ब किया। वो अच्छा, यहाँ पे अगर किसी ने गाली निकाली है ना, अगर मलिक इमरान ने भी निकाली है, इसको अगर समझाया। अब यूसुफी साहब है, यूसुफी साहब भी पहले ऐसे इन्होंने एक बार किया है, तो इनके साथ बात हुई, इनकी एक मिनट में बात तो सुन लिया। अबू बकर इन्होंने इस्लाह कर ली अपनी, इन्होंने अपनी इस्लाह कर ली, बात खत्म। ऐसा दिल नहीं। लेकिन अब आप ये कहें कि हम किसी के पास इस्लाह करने के लिए जाएं, वो हमको गाली दे दोबारा, फिर दोबारा इस्लाह करने के लिए जाएं, वो फिर से गाली दे, और फिर हम जवाबन उसको गालियां देनी शुरू कर दें, और फिर ये ईट पटक्का लगा रहे, हम उसको गालियां दे, वो हमको गालियां दे, मतलब ये होगी इस्लाम। भाईजान बात तो सुन लो। ये जो मलिक साहब यहाँ पर बैठा हुआ है, दूर ना जाएं, आपके नजरों के सामने बैठा हुआ है। ऐसा दिन नहीं। अस्कानी भाई कब मैंने गाली दी आपको? एक मिनट, बात तो सुनो, नाराज नहीं होना। नहीं मैं हूँ, मेरे ख्याल में मैं आईना दिखा रहा हूँ, जरा आईना देख लीजिए।
आईना देख लीजिए, ये जो मलिक साहब हमारे भाई हैं, बड़े हैं, बेटे हुए हैं, ऐसा दिन नहीं गुजरता जो ये पप्पू को गाली ना दे। कभी आपने रोका? कभी इससे ताल्लुकी इख्तियार की? बताओ। हर दिन गाली देता है ये, हर दिन। क्यों देता है गाली? बस जी और मेरे तो चढ़ जाओ। मैं एक बात कर रहा हूँ, आमिर भाई आप ऐसी बात कर रहे हैं, आप नहीं लगता है पीर साहब इसको मैं रोकता हूँ मलक मनान को कि पप्पू को यार गाली ना दिया कर। सब दिए मैंने गाली उसको। नीचे उतारा है मैंने, नीचे उतारा है मैंने। आमिर भाई वैसे ना एक बात है मलिक इमरान कितने साहब, लोगों से ये बात कर लो। आमिर भाई बताओ, तुम्हारे पास कोई जवाब है? मैं इमरान भाई एक बात मैं काफी देर से खामोश बैठा हूँ। सवाल का जवाब आपको नहीं मिला? आमिर भाई मैं एक बात बताता हूँ, मेरा बाबा जो है मेरा वालिद है। मैं आता हूँ 5 आमिर मिनट। भाई मैं सवाल का जवाब दूंगा। मेरा बाबा यार, एक मिनट, गालियां दे एक दूसरे को, गालियां दे। मैं आया 5-10 मिनट। एक भाई एक मिनट ठहरियो यार, दूसरी भाई गाल कर दें सारे ये है गैरतमंद, हम दूसरे भाई, गैरतमंद में जिन्होंने करो गाली दी, हम उनके साहब, साथ इजाजत नहीं है बात बैठेंगे, करने की? लेकिन उन दूसरों को दे दो। अस्कानी बस साहब मुझे बात करने की इजाजत है? हाँ भाई, आपको इजाजत है यूसुफ भाई। बात ये है, बड़ी मेहरबानी। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है, आपका जो अलाए अमल है ठीक है, आप चलो, लेकिन दूसरे के किरदार कशी मत करो, मत कहो मैंने किसी का नाम नहीं लिया। भाई ये फितना हो रहा है, फितना। अभी आमिर साहब कह रहे हैं क्या सजा देते, क्या सजा देते? भाई मलामत ही कर रहा है ना, वो मलामत ही कर रहे हैं, और कौन सा सजा देना है? चलें, बहुत शुक्रिया, आप थोड़ा सा इजाजत दे दें, मेहरबानी। आप हमेशा दूसरों के गुफ्तगू पर आप नकीर मत करें। अल्लाह ने आपको इल्म दी है, आपको सलाहियत दी है, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबको आप जो है वो ऐसी पट्टी पढ़ाएं कि वो दूसरों से नफरत करना शुरू कर दे, लातुल्लुकी करना शुरू कर दे, मुसलमानों से जो है वो बेजारी का ऐलान करना शुरू कर दे, क्योंकि आपके मुंह में जो बात थी उसने बोला नहीं। भाई आपके मुंह में जो बात थी वो अल्लाह पाक ने नहीं बुलवाया, उससे जितना बुलवाया अल्लाह पाक ने उसने बोल लिया, बस ठीक है, शाबाश है। अगर उस खबीस ने जो है वो गंदगी की है, 2-4 आदमी उसको मलामत कर रहे हैं, इतना ही कर सकते हैं ना, तो बस ठीक है। ये मत कहो नहीं ये गलत है, पहले मिर्जा को सजा दे दो। और तुम लोग इजाजत दे दें, थोड़ा सा मुझे भी इजाजत दे दें बात करने की। यूसुफ भाई को बोलने दें। अच्छा मैं फिर उससे माजरत करता हूँ, नीचे बैठता हूँ। नहीं आप ऊपर ही रहेंगे, मैंने क्योंकि आप ही से बात करनी है। निकालेंगे ना, जिसने बैठना है बैठे, ना बैठना बैठे, ये मैंने आप ही से बात करनी है, ये सबका है, सबने बात करना है, आप ही से बात करनी है ना, मिल के बात करना है। हाँ जी मिल के करते हैं, लेकिन आप जाइए ना, मैंने आप ही से बात करनी है कुछ, आप जाइएगा ना प्लीज। बात यह है कि यहाँ पे 2 दिन या 3 दिन से जो गुफ्तगू हो रही है उसका लुब्बे लबाब क्या है एक्चुअली। अभी दौरान गुफ्तगू आपने एक बात की जोश खताबत के अंदर की, या आपकी इंटेंशनली आपने वो बात की कि 2-4 बंदे अगर उस कल्ट को छोड़ करके, उस गंदगी को छोड़ करके इधर आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है, आने दो। और फिर मोहतरमा के बारे में आपने कहा कि वो तो मुसलमान हो चुकी हैं, और मेजॉरिटी जो है इस कल्ट को छोड़ती है ना कि कुरान और हदीस को देख करके, बल्कि इस गंद को देख करके। जब उनको पता चलता है हम इस गलाजत के अंदर हैं, इस गंदगी के अंदर हैं, तो वो इस कल्ट को छोड़ देती है, इस मज़हब को छोड़ करके वो दीन इस्लाम की तरफ अपने आप को माइल करते हैं। या बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि इस्लाम से ही वो अपनी जान छुड़ा चुके हैं। वो कहते हैं इस्लाम तो पहले ही गलत हमें कहा गया और इस जमात में आए हैं तो ये जमात भी गलत है, लिहाजा वो छोड़ करके वो इलाहाद की तरफ चले जाते हैं, या कोई भी और दीगर मज़हब वो इख्तियार कर लेते हैं। बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन हम उनकी बात करते हैं जो इस्लाम की तरफ आए हैं। आपने ये कहा कि इनकी इबारतें इनके सामने खोल के दिखा दो, इनको बताओ कि ये गंदगी है। अस्कानी साहब यही तो हम बात कर रहे हैं। मीर सलीम या सैफ़ी वो कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जिन्होंने इस मज़हब का दीन का आइन बनाया है, इसकी कानून, इसके लॉ उन्होंने पेश किए हैं, इसकी शरीयत उन्होंने पेश की है, इसके जो तर्ज़ तमल है उन्होंने पेश किया हो? किसी ने नहीं पेश किया। उन्होंने एक लिखी हुई बात जो कि उनके बानिय जमात में लिखा, बानिय जमात ने जो मज़हब बनाया है, बानिय जमात ने जो तालीम दी अपने मानने वालों को, उसने वो लिखी हुई बात हू बहू उसी तरह पढ़ के लोगों के सामने रख दी। दलील के तौर पर बानिय जमात की इबारतें भी पेश की। हम ये कह रहे हैं, आप जैसे कह रहे हैं कि वो लानत मलामत कर रहा है, तो फिर उसको अप्रिशिएट करो जिसको लानत मलामत की जा रही है। इसका मतलब ये है कि एक आदमी लानत मलामत कर रहा है। यही सैफ़ी की मिसाल ले लें कि सैफ़ी के ऊपर, हाँ जी आप जमात अहमदिया से ताल्लुक़ रखती हैं या रखते हैं, आप इस पर लानत भेजते हैं, वो आगे से जवाब दे रही हैं या दे रहा है
کہ بالکل بالکل اس نے بڑا گندا غلیظ کام کیا ہے، جماعت احمدیہ کا یہ موقف نہیں ہے، جماعت احمدیہ کی یہ تعلیم ہی نہیں ہے، اور نہ ہی بانی جماعت نے یہ کہا. ہم کہتے ہیں نہیں، آپ یہاں غلط ہیں. جو بندہ یہ جا کے مثال دینے کی کوشش کر رہا ہے اس کو کنڈیم اس لیے کر رہا ہے کہ دیکھو دیکھو جماعت تو یہ نہیں سکھاتی، جماعت کا بانی تو یہ تعلیم نہیں دے کے گیا، اس نے تو کوئی عبارت ایسی نہیں لکھی کہ آپ انبیاء کے اوپر شاتمیت کرو، صحابہ کرام کے اوپر بکواس کرو، اسلام کے خلاف بکواس کرو، نبیوں پر شراب یا زنا کاری جیسے الزامات لگاؤ. نہ 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 نہ، مرزا صاحب یہ تعلیم نہیں دے کے گئے، تم یہاں یہ گندے انڈے کہاں سے آ گئے؟ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی، یہی جماعت سکھا کر گئی ہے. اس بیچارے کو کوئی قصور نہیں ہے سیفی کا، میں بالکل اس کا مقدمہ لڑ رہا ہوں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. اس نے جو بات کی، جو اس نے سیکھا، جو اس کو تعلیم دی، اس نے وہی پیش کی. وہ سب لوگ غلط ہیں جو سیفی کو غلط کہہ رہے ہیں. وہ دوسری طرف یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بڑے اچھے پاک صاف لوگ ہیں، دیکھو ہم نے اسلام کا پورا وزن اٹھایا ہوا ہے، ہم وہ تعلیمات پیش کر رہے ہیں جو اسلام کی ہیں کیونکہ مرزا صاحب نے یہ تعلیم نہیں دی. وہ کہتا ہے بیوقوفو کشتی نو نکالو، او بیوقوفو نور القرآن نکالو، او بیوقوفو نکالو مرزا صاحب کی کتابیں. اس کے اندر اس مرزا صاحب نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شراب کے عادی تھے، انہوں نے کہا ہے ان کی ضروریت جو ہے وہ زناکار عورتیں تھیں. یہ کہتے ہیں نہیں، ہمارا موقف یہ ہے، جو ہمارے دوست ہمارے بھائی وہاں پہ جا کے بات کر رہے ہیں وہ تو مرزا صاحب کی وکالت کر رہے ہیں، وہ مرزا صاحب کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کو بیوقوفو تمہارا ایک مربی تمہارا معلم جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، بیوقوفو کیا تم جماعت کا یہی موقف رکھتے ہو؟ ہم ان کو نا سمجھی کی وجہ سے ان کی میں یہی کہتا ہوں کہ وہ بے خیالی کے اندر مرزا غلام قادیانی کی وکالت اور اس کا موقف کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ یہ اس کی تعلیم نہیں ہے. آج ہمارا یہاں پہ کل بھی، آج بھی، یا اس سے پہلے بھی اور آج کے بعد بھی جو بات ہوگی ہماری یہی بات ہوگی کہ جماعت احمدیہ کے لوگ جب ہمارے یہاں سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، جب بھی ہمارے سے گفتگو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تم ہماری باتیں تمہارے سامنے رکھتے ہو، ہم اس کا مطلب پیش کریں گے. ذلی اور بروزی کا مطلب کیا ہے؟ ہماری باتیں ہمارے سامنے پیش کرتے ہو، ہم تمہیں یہ سمجھائیں گے کہ مرزا صاحب کی تعلیم کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی وہی تعلیم ہے جو مرزا صاحب نے لکھی ہے، جو مرزا صاحب نے اپنے لکھ کر دی، اور پھر مسیح موعود نے جس مسلم موعود کا پیش گوئی دی تھی، مسلم موعود وہی ہے جو جماعت کی اصلاح کرے گا. اس کی طرف لگو، اس کی یہی تعلیم ہے، وہ تمہاری اصلاح کر رہا ہے کہ تم اس سے مت بھٹک جانا. ہمارا شیوا، ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسولوں کے اوپر، اللہ کے پاک بندوں کے اوپر، اللہ کے نیک بندوں کے اوپر ہم نے دشنام درازی کرنی ہے. ہم نے ان لوگوں کو مسلمان بھی نہیں کہنا، ہم نے ان کی نمازوں کو نمازیں نہیں کہنی، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، ان کا جنازہ نہیں پڑھنا، ان کے ساتھ حج نہیں ہم کر سکتے. زکوٰۃ، صدقات جیسے، جہاد جیسے جو فرائض ہیں ان کو ہم نے کالعدم قرار دے دیا کہ اب جہاد نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نہیں مرزا صاحب نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی، مرزا صاحب نے تو کوئی قرآن میں تعریف نہیں کہی، مرزا صاحب نے تو نہیں کہا کہ میں احمد یہی قرآن میں میرا نام ہے، مرزا صاحب نے تو نہیں کہا محمد رسول اللہ کی جو قرآن پاک میں جو آیہ مبارک ہے یہ اس میں میرا نام ہے محمد. ہم کہتے ہیں یہ مرزا صاحب نے کہا. یہ کہتے ہیں نہ تمہیں نہیں پتا. تو اسقانی صاحب، میں آپ سے معذرت کے ساتھ پلیز، ہمیں کسی سے کوئی دعوت نہیں، کوئی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو لوگ نا سمجھی میں، بے خیالی کے اندر وہ یہ سمجھنے یا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سیفی بے قصور ہے، نہ مطلب سیفی کا قصور ہے، بالکل نہیں. سیفی بے قصور ہے، میر سلیم بے قصور ہے، اور جماعت احمدیہ کے جتنے لوگ ہیں وہ بالکل بے قصور ہیں. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیفی نے غلط کیا، وہ منافقت کر رہے ہیں جماعت کے ساتھ، وہ منافقت کر رہے ہیں مرزا غلام قادیانی کے ساتھ، وہ اپنی جماعت کے ساتھ مخلص نہیں ہے. تو یہ ہمارا موقف ہے، یہ موٹو ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس میں موقف غلط ہے، مرزا غلام قادیانی نیک پارسا اور اچھی تعلیم دے کر گیا ہے، یہ نکھٹو یا یہ گندے انڈے آ کر کے غلط تعلیم پیش کر رہے ہیں، تو سوری، میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ وہی تعلیم پیش کر رہے ہیں جو کہ غلام قادیانی کی بانی جماعت کی ہے. تو ہم اپنی بات کو اس طرح اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ جب آپ جا کے یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر لعنت ملامت کر دو، اس کی کیا اوقات ہے سیفی کی؟ یہ تو یہ آپ کو پتہ ہے 6-7 سال ہوئے، 8 سال ہوئے جماعت کے اندر یہ داخل ہوا ہے، اس نے جماعت کو اختیار کیا ہے. تو اس کی کیا اوقات ہے؟ یہ کیا اپنے گھر سے لے کر آئے یہ باتیں؟ یہ ساری باتیں وہی پیش کر رہا ہے جو اس کو جماعت میں آنے کے بعد. آپ کی بات ختم ہو گئی آج یا نہیں؟
मैं ख़त्म कर रहा हूँ, तो लिहाजा आपकी मेहरबानी है, ये बात हम बजाय ये कि जिस जो हमारा मौजूद भाई था, आप जो मौक़िफ़ है, उस पर बात थोड़ा सा खत्म तो करो ना भाई प्लीज। देखिए मैंने काफ़ी देर इंतज़ार किया, चले ठीक है मैं ख़त्म कर देता हूँ। एक बात का जवाब अगर दे दो, आपको लग रहा है कि मुझे ख़त्म ही कर देनी चाहिए बात, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसने अपना मौक़िफ़ पेश नहीं किया, इसने जमात का मौक़िफ़ पेश किया है और जमात का यही मौक़िफ़ है। जो बंदा ये जा करके कहेगा कि नहीं ये जमात का मौक़िफ़ नहीं है या जमात के खिलाफ ये बात कर रहा है, इसको इसको कंडेम दोहराने का करो, क्या तो वो फायदा? बंदा ये बात गलत तो है। आप 10 मरतबा कह चुके हैं, इसको मत दोहराइए भाई। मुसलमानों में से वो कौन शख्स है, पहला मेरा सवाल, मुसलमानों में से वो कौन सा शख्स है जिसने ये कहा कि ये जमात का मौक़िफ़ नहीं है? कोई मुसलमान ने नहीं कहा। हाँ, कादियानी ये कहते हैं, मुसलमान तो ये नहीं कहता है ना भाई। इसका जवाब दे दीजिए कि कौन है वो मुसलमान जिसने ये कहा? नहीं है दूसरी जमात बात, का मौका, नहीं है जमात का मौका। जी मैं ये अच्छा अगर आप ये एक मिनट, सिर्फ एक मिनट मुझे दे दें, आपसे भाई उन्होंने आप सवाल बाद में बात कर लेना, बाद में बात कर लें, नोट कर लें मैंने जो कहा। पहले तो आप मैं लाइन हर्ट से ये कह रहा हूँ, वो बीच में इंटरप्ट करें, उनको ये कहा है कि आप बाद में अपना मौका दीजिएगा। हाँ, पहले तो आप ये बताइए कि वो कौन है, थैंक यू, वो कौन है पहले शख्स जिसने कहा मुसलमानों में से कि ये जमात का मौक़िफ़ नहीं है? अगर है तो आप उसका नाम बताइए। दूसरा सवाल मेरा ये है, अगर वाक़तन आप लोग सही हो तो कल वो डॉक्टर डार्लिंग ने जो यहाँ पर ऐलान किया और रिकॉर्ड करके तमाम ग्रुपों को पहुँचाने की अपील की, क्या तुक बनता था उसका? फिर तो ये अपील होना चाहिए था, मैं तो कहता हूँ उसने सही अपील की। फिर तो ये अपील होना चाहिए था कि पूरे हिंदुस्तान में फैलाओ कि मिर्ज़ा ने गालियाँ दी हैं इसलिए इसने गाली दी, उसको सज़ा की क्यों बात हो रही थी? भाईजान वो मसला अलग है, और यहाँ इसने जो गलती की है इसको मलामत करना होगा, जो भी कर रहा है सही कर रहा है, कहने का मकसद इतना है। दोनों सवालों का जवाब दे दो। एक, मुसलमान कौन है जिसने कहा ये मौक़िफ़ नहीं है जमात का? दूसरा, कल डॉक्टर डार्लिंग ने जो ऐलान किया कि इसको सज़ा देना चाहिए, क्यों? जबकि आप कहते हैं ये तो गलत है। पहले तो मिर्ज़ा को जो है वो मलामत करना चाहिए। दोनों का जवाब दे दीजिए प्लीज़। रुकिए जरा एक सेकंड, अपना यूसुफ भाई, आप अपना स्टेटस पप्पू मलक वाला ना बनाएं। हम अपने मतलब इस तरह के पप्पू मलक जैसे, ये आबद साहब जैसे जो लोग हैं ना, इनके साथ हम जो झगड़ा करते हैं या अपना वो उस वक्त करते हैं जिस वक्त हमारे पास फालतू दिमाग होता है। यानी हमारी नज़र में इनकी रिस्पेक्ट इतनी है कि जब हमारे पास फालतू टाइम होता है हम कहते हैं चलो आ जाओ आपस में जोर शोर करो। आप अपना रिस्पेक्ट ऊपर रखें, अपने आप को नीचे न गिराएं कि हम आपके साथ इन बातों पर बहस करें कि ज़िया रसूल ने कल ये गलती क्यों की, आमिर नज़ीर ने परसों ये गलती क्यों की। इस पर ना एनर्जी लगवाएं हमारी, आपकी मेहरबानी है, इस बात को छोड़ दें। हमने ऐसे ही करना है, आपको बुरा लगता है, अच्छा लगता है, दलाइल आ गए हैं, सुन लिए हैं, जिसका दिल करता है वो आपके दलाइल के साथ मुत्तफिक हो जाए। अब हमने इस पे कोई मतलब ज़मीनें तकसीम करनी आपस में, क्या झगड़ा इस पे बढ़ाना है? बात खत्म हो गई है। हमारी नज़र में जिस तरह हम सही समझते हैं हम तो वैसे ही करेंगे। जिन लोगों से हम नफरत करते हैं, जिन लोगों के रवैये से, जिन लोगों के वो बुग़्ज़ और कीने से और उनके गालम गलोच से हमने नफरत की, वो हम ऐसे ही चलते रहेंगे। बुरा लगता है, अच्छा लगता है, आपका अपना मिजाज, हमारा अपना मिजाज, इसको छोड़ दें आप बहस को। अब वो आए हैं तो उनके साथ बात करने दें, उनको यूसुफ भाई को आपस में छोड़ दें बहस। चले छोड़ देते हैं, बात कीजिए, दूसरी बात कीजिए। यूसुफ भाई करें बात जो आप कर रहे, किसके साथ करें बात में अभी हम। जी लाइन आर्ट साहब आप आए हैं, आपने ये कहा मैंने म्यूट करें दियो, मैं इस जात के गडेरिया बेचना है। चलो करो, तुझे कर लो गल कर लो। मलक है, खामोश हो जा, म्यूट कर ले माइक, करो यूसुफ भाई को। यूसुफ भाई आपने कहा कि मिर्जा साहब ने लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम शराब पिया करते थे, बताएं वो निकालें हवाला। निकाले भाई साहब, आप इसको डिनाई करते हैं कि क्या मिर्जा साहब ये नहीं लिखते थे या उनका ये अकीदा नहीं था, उन्होंने ये ऐसी कोई बात हवाला लगाए ना, आपने बात की, हवाला लगाएं। मैं हवाला लगाऊंगा, लेकिन पहले हम ये इस बात पर तो मुत्तफिक हो जाए। दोनों लाइन आर्ट साहब जब बात करनी है ना तो एक बंदा एक वक्त में बात करेगा, वरना कोई समझ नहीं आएगी कौन क्या गुफ्तगू कर रहा है, दोनों बोलते रहेंगे। मेरा आपसे सवाल है मुख्तसर सा, मैं हवाला यहाँ पे लगा देता हूँ, क्या आप इस चीज से डिनाई करते हैं कि मिर्जा साहब ने ऐसी कोई इबारत नहीं लिखी या उनका ये अकीदा या उनका ये फहम नहीं था? मिर्जा साहब ने अपना फहम नहीं लिखा वहां पे, मिर्जा साहब ने अपना फहम नहीं लिखा वहां नहीं पे? लिखा वहां पे। अच्छा जी, किताब खोलें जी, कश्ती नूह। बताएं जी, मैं खोलता हूँ, बताएं क्या किताब है। अबू बकर भाई 12 घंटे तो लगाएं इस टाइम। हाँ जी बताएं जी। एक मिनट, मैं
स्कैन लगाता हूँ, मुझे अपना फोन दूसरा लेना पड़ेगा। नहीं मुझे पता है, मैं भी खोलता हूँ, मैं आपको पूरा करके बताऊंगा, फिक्र ना हाँ करें। कश्ती नु किताब है और सफ़ा नंबर है उसका 89, आप खोलें ये वहाँ पर हाशिए में 79। 89 मेरे ख्याल से। हाँ जी, ये मिर्जा साहब की किताब है, ये किस वाले में, रोनी खजाइन में है? कुरान खजाइन की कश्ती नु कौन सी 18वीं जिल्द में है?